Hello student, today I am going to start with the physics class 12th chapter number 5 magnetism and matter. Let's start. Aman, can you please come here? I want to ask you something. What happened today? See there. The machine is moving the scrap of iron and steel from the waste material. Yes, I can see that. But how is it possible to extract the desired material from the wastage? It is simple. Basically, it is an electromagnetic crane which works on the principle of magnetism. Its anchor is made up of an electromagnet. When electric current is passed through it, it behaves like a magnet and attracts only iron and steel from the scrap. Okay, I got the answer of my question, and I want to know more about this. Will you please tell me? Sure. Today we will study about the magnetism and matter. Objectives. At the end of this lesson, you'll be able to define magnetism and bar magnet, know about magnetic field lines, analyze bar magnet as an equivalent solenoid, analyze dipole in a uniform magnetic field, describe Gauss's law in magnetism, know about Earth's magnetism, define magnetization and magnetic intensity, understand magnetic properties of material, analyze hysteresis curve, describe permanent magnet and electromagnet. So in today's session, I'm going to explain the define magnetism and bar magnet, know about magnetic field lines, analyze magnet as a equivalent solenoid. Today I'm going to take only these three topics in this video. Let's start. Definition. The phenomenon of attracting magnetic substances like iron, nickel, cobalt, etc. is called magnetism. A body possessing the property of magnetism is called magnet. The two centers of attraction in any magnet are called its poles and are named as North Pole and South Pole. The region around a magnet in which it exerts forces on other magnets and on objects made of iron is called a magnetic field. So about magnetism and the magnet you already have done in your previous 9th and 10th class. I'm just only revising these topics. The phenomena of attracting magnetic substance. Magnetic substance कौन से होते हैं जिसमें आपका आयरन की अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी रहती है मैग्नेट के साथ. इसमें एग्जांपल आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड अदर फेरस सब्सटेंसेस भी हैं. दे आर कॉल्ड एज मैग्नेटिक सब्सटेंस. तो बॉडी प्रोसेस द प्रोसेस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेट. जो भी बॉडी किसी चीज को अट्रैक्ट कर लेगी दैट इज और या उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है दैट इज कॉल्ड एज द मैग्नेट. The two center of attraction. Every magnet has the two center of attraction, which is called as the North Pole as well as the South Pole. And the region around the poles. Suppose यहाँ पे U type magnet है, यहाँ पे North Pole and South Pole है, और this is the area of influence of the magnetic field. इस area को ये मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं जहां पर कोई भी सब्सटेंस या मैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्शन या रिपल्शन का प्रॉपर्टी एक्वायर करता है तो वहां पर उस एरिया को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. Bar magnet. A magnet in the form of a bar with magnetic poles at each end is known as a bar magnet. The main properties of a bar magnet are as follows. When a magnet is suspended freely, it aligns itself with one end pointing towards north of Earth and other towards south of. Now we'll start with the bar magnet. It is like this only. A bar magnet एक तरह की बार की तरह से है which is having a south pole and the north pole. तो properties of bar magnet क्या रहती हैं? तो first है अगर किसी भी magnet को आप freely suspend कर देते हैं मतलब धागे के साथ बांध के इसे अपने हाथ में पकड़ लीजिए तो it align itself in one end pointing towards the north of the earth and other towards the south of the earth. तो automatically ये अलाइन कर लेगी अपने आप को नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में. सपोज आपने ये है इसको आपने ये आपका मैग्नेट है और आपने इसको यहाँ से पकड़ के पकड़ेंगे नहीं आपको थ्रेड के साथ इसको बांधना है और इसको करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नॉर्थ एंड साउथ की तरफ पॉइंट हो जाएंगे जो आपका अर्थ का नॉर्थ है और अर्थ का साउथ है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट. Of Earth.
Unlike poles attract and like poles repel each other. Now this is the other property. Unlike poles attract each other and the like poles are repel each other. A magnet attracts magnetic materials. This attraction is maximum at the poles. So attraction towards the magnetic substances, जो मैग्नेट है सबसे ज़्यादा पोल के पास ही वो अट्रैक्ट करती है. अगर यहाँ पे खूब सारे आयरन नेल्स होंगी तो यहाँ पर तो एक आधा कोई चिपक जाएगी, बट मैक्सिमम अट्रैक्शन इज एट द पोल्स. Isolated magnetic pole does not exist. Magnetic poles always exist in pairs. सपोज ये आपके मैग्नेट है, अगर इसमें बीच में से ब्रेक कर देती हूँ, दो पार्ट्स में ब्रेक कर देती, सो दैट के सोचूं कि साउथ अलग हो जाए और नॉर्थ अलग हो, लेकिन ऐसा नहीं होता. मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर. मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ पेयर. तो अगर मैंने इस बीच में से भी इसको तोड़ देती हूँ तो अगेन जो फर्स्ट पार्ट होगा टूटने के बाद उसमें भी साउथ नॉर्थ आ जाएगा एंड सेकेंड पार्ट के अंदर भी साउथ नॉर्थ ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा. दैट मीन्स मैग्नेट पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. A magnet can induce magnetism in substances like. सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ ए मैग्नेट. अगर मेरे को किसी भी मैग्नेट के अंदर इंड्यूस करना है, सपोज ये मैग्नेटिक मटेरियल है, जैसे आपका सॉफ्ट आयरन, कोबाल्ट, निकल या एनी अदर फेरस अलॉयज होंगे जिसके अंदर आयरन की प्रॉपर्टीज होंगी, तो उस अगर सपोज ये यू पिन है आपकी, इट इज मेड अप ऑफ आयरन ओनली. अगर मुझे इसको मैग्नेटिक सब्सटेंस बनाना है तो मैं इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करूंगी. तो इंड्यूस करने में क्या होगा, इन द सेम आपको सर्कुलर मैनर पे इसके सरफेस पे स्लाइड करना है. ऊपर से नहीं लेके जाना, हवा में नहीं लेके जाना. यू हैव टू स्लाइड ऑन द सरफेस इन वन डायरेक्शन ओनली. ऐसे नहीं कि आप ऐसे घुमा रहे हो फिर ऐसे घुमा रहे हो फिर ऐसे ऐसे कर रहे हो. यू हैव टू गो इन अ circular manner in only in one direction. After doing 40 to 50 times, this material become magnetized. This is the property of a magnet कि वो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करते हैं, बट इट्स नॉट ए परमानेंट मैग्नेट. ये एक टेम्पररी मैग्नेट बनेगा. Soft iron, cobalt, nickel, and various ferrous alloys. सो आफ्टर दैट दिस यू पिन, अभी हमने प्रोसेस देखा था इंड्यूस मैग्नेटिज्म का, तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगी एंड इट विल अट्रैक्ट द अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस. Magnetic field lines. A magnetic field can be represented by lines called the magnetic field lines. A magnetic field line is defined as the curve, the tangent to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point. Magnetic field lines never intersect each other. The magnetic field is stronger in regions where the field lines are relatively close together and weaker where they are relatively far apart. Magnetic field lines are always closed continuous loops. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैन बी रिप्रेजेंट बाय लाइंस. तो अगर हमें फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करना है, या आपने प्रीवियस क्लासेस में भी करा है, वी कैन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लाइन से ही इनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड द टेंजेंट, अगर इसकी डायरेक्शन आपने फाइंड करनी है कि किस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही है, तो आप किसी भी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं एंड दैट टेंजेंट, द डायरेक्शन ऑफ दैट टेंजेंट, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट with each other. This is a very important point. Like the electric field also, the magnetic lines also never intersect with each other. They are in the continuously in a closed loop. एक closed loop में ही ये move करते हैं. And magnetic field lines is stronger in a region where the field lines are relatively close together and weaker where they are relatively far apart. मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नियर द पोल, क्योंकि यहीं से वो स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आकर साउथ पोल पे वो एंड हो रही है, तो यहाँ पे जब वो नियर क्लोजर टू ईच अदर होंगी, जब एक दूसरे के नज़दीक रहेंगी, पास पास रहेंगी, तो उस रीजन में फील्ड की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है दैट इज मोर स्ट्रोंगर एज कम्पेयर टू द अदर, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देम वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पर आपका स्ट्रेंथ वीकर हो जाएगी. एंड द फील्ड लाइन्स ऑलवेज इन अ क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप. अगेन दे आर इन अ क्लोज कॉन्टिन्यूस लूप के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं.
bar magnet as an equivalent solenoid. The magnetic field patterns are similar of solenoid and bar magnet. Also, the solenoid itself behaves as a bar magnet with a north pole on one side and a south pole on the other side. Now the bar magnet as an equivalent solenoid. The magnetic field pattern are similar to the solenoid and the bar magnet. Solenoid का topic you already have done in your previous class. You already know कि solenoid क्या होता है. पहले let me explain what is a solenoid. Suppose ये कोई भी आपका एक material है, इसके solenoid बनाने का तरीका क्या है कि आप इसके चारों तरफ आपने अगर number of turns बना रहे हैं, वायर को आप कंडक्टिंग वायर को आप फोल्ड कर रहे हैं, तो ये जो आपका ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे सपोज n नंबर, सपोज यहाँ पे 1 2 3 4 5 टर्न्स आए, तो यहाँ पे हमने बहुत सारे टर्न्स करने क्लोज टू ईच अदर. तो यू कैन सी दैट जब आप ये इस तरह का लूप बनाते हैं, दिस इज अ स्मॉल पोर्शन दैट आई एम शोइंग यू. ये आपका जब इसके अंदर से वायर के अंदर से जब आपका करंट फ्लो करेगा दैट विल एक्ट एज अ मैग्नेट. तो ये आपका एक सोलोनाइड बन जाएगा जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करेंगे. सो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और जब इसके अंदर से हम करंट फ्लो करेंगे, सपोज द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो दिस विल बिहेव एज अ मैग्नेट. इसका डायरेक्शन डिसाइड करता है करंट, इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल कौन डिसाइड करेगा? द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर करंट आपका इस डायरेक्शन में है तो नॉर्थ पोल आपका यहाँ से निकलेगा क्योंकि नॉर्थ से ही आपकी लाइंस बाहर आती हैं, और साउथ पोल यहाँ से क्योंकि यहाँ से लाइंस अंदर जाती हैं. यू कैन सी दैट फ्रॉम हियर कि नॉर्थ पोल से आपकी लाइन स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल्स में वो एंटर करती हैं. तो अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो ये आपका नॉर्थ पोल रहेगा, ये आपका साउथ पोल रहेगा. अगर करंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है तो ये आपका नॉर्थ पोल होगा, ये आपका साउथ पोल होगा. तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट वी कैन से कि ये जो सोलोनाइड एक मैग्नेट की तरह से बिहेव कर रही है कि इसका नॉर्थ पोल यहाँ पर है और साउथ पोल यहाँ पर है, अगर करंट आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है. Two adjacent solenoids can be either attracted to or repelled from each other, depending on the relative directions of the currents. Can be either attracted to or repelled from. Now, suppose एक सोलोनाइड आपका ये है जिसका डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जा रहा है. एक और सोलोनाइड मैं यहाँ पे ले आती हूँ बट उसका करंट मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में दिखाऊंगी. सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सपोज यहाँ पे आपका करंट इस तरफ से जा रहा है तो ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, और दूसरा सोलोनाइड लेकर आ रही हूँ जिसका करंट लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो गया, तो अपोजिट पोल्स डेवलप हो जाएंगे, तो देयर इज अ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू सोलोनाइड. सेम वी कैन डू इट विद द रिपल्शन ऑल्सो if the current is flowing in the same direction in both the solenoid. तो अगर सेम डायरेक्शन में दोनों सोलोनाइड में करंट फ्लो करेगा तो वहां पर आपका रिपल्शन शो करेगा. सो डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट सोलोनाइड अट्रैक्शन एंड रिपल्शन शो करती हैं. From each other, depending on the relative directions of the currents. Let us consider a solenoid of length 2L and radius r composed of a series of n current loops, each carrying a current I. The magnitude of magnetic field at an axial point P due to this elemental loop is given by mu naught upon 4 pi multiplied by 2m upon r cube, when m is the magnetic moment of solenoid. This is exactly the same as that of a bar magnet at far off axial point. नाउ तो बार मैग्नेट एज ए इक्विवेलेंट सोलोनाइड, इसका एक डेरिवेशन होता है वो मैं भी आपको करके बताऊंगी. यू हैव टू कंसीडर अ सोलोनाइड. आपको ये सोलोनाइड कंसीडर कर रहा है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे टर्न्स हैं जो अभी आपको विजिबल नहीं हो रहे, बट ये एक सोलोनाइड है जिसका लेंथ 2L है. सेंटर से, दिस इज द सेंटर हो, सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इन्होंने L लिया है और यहाँ पे भी L डिस्टेंस रहेगा. हमें इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है बिकॉज ऑफ दिस सोलोनाइड. इस पॉइंट P पे जिसका रेडियस R ले रखा है और सेंटर से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज योर R. एंड ये एक एलिमेंट लिया, एलिमेंट मतलब हमने छोटा सा पोर्शन कट कर लिया है सोलोनाइड का जिसके अंदर हो सकते हैं n नंबर ऑफ टर्न्स, हो 2 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, n नंबर ऑफ टर्न है जिसका जो लेंथ है दैट इज
dx लेंथ है उसका, और सेंटर से इसका लेंथ है x. तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस सोलोनॉइड विच इज बिहेव एज अ बार मैग्नेट. हमें बार मैग्नेट की तरह इसको इक्विवेलेंट करेंगे और एंड में रिजल्ट आपको म्यू नॉट 2m 4 पाई r स्क्वायर किस तरह से आता है, लेट्स सी. Now let's start with the bar magnet as in solenoid. Now let us consider a bar magnet है जिसका लेंथ है आपका 12 है, और ये अगर सेंटर पॉइंट है O से डिनोट कर देते हैं. सेंटर पॉइंट O है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपका L है, और सेम यहाँ से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है आपका वो अगेन L है. नाउ लेट अस कंसीडर ये जो आपका है डायमीटर रेडियस ऑफ एन सोलोनाइड, आपका A से मैं डिनोट करें विच इज अ रेडियस ऑफ सोलोनाइड. इट इज अ रेडियस ऑफ सोलोनाइड. अब ये सेंटर से एक्सियल पॉइंट, दिस इज द एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट पे एक पॉइंट P है जहां पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. बिकॉज ऑफ दिस कंप्लीट सोलोनाइड की वजह से आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. तो उसके लिए आपने क्या करना है, लेट अस अज्यूम दैट सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को हम R मान लेते हैं, ठीक है. एंड एक dx एलिमेंट ले लिया. dx एलिमेंट मतलब मैंने इस सोलोनाइड का एक छोटा सा पोर्शन ले रही हूं, मैं बिल्कुल छोटा सा पोर्शन ले रही हूं जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं. इसका जो लेंथ है वो हम इसको dx मान लेते हैं. इसका लेंथ जो है इस छोटे से एलिमेंट का जो लेंथ है वो हमारा dx मान लेते हैं. एंड सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है वो x से डिनोट कर देते हैं. तो नाउ जो डिस्टेंस रहेगा और जो यहां से लेकर इस पॉइंट से लेके सेंटर से और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस रहेगा वो आप ले लीजिए R. यू ऑलरेडी हैव टेकन, वी हम टेकन R ले चुके हैं. और यहां से लेकर इस एलिमेंट से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को आप मानेंगे R माइनस एक्स. बिकॉज यहां से लेते R है, ये डिस्टेंस अगर R है और ये डिस्टेंस अगर x ले लिया मैंने, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस इज योर R माइनस एक्स. नाउ इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव डन, अगर हमारा कोई सर्कुलर रिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिंगल रिंग, अगर ये R रेडियस है सेंटर से और यहाँ पे एक पॉइंट P है जहां पे हमने इस रिंग में करंट I फ्लो कर रहा है, इस रिंग के अंदर करंट I अगर फ्लो कर रहा है जिसका रेडियस R है, और हमने इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. B इज इक्वल टू म्यू नॉट I is the current which is flowing in this circular ring, R square where R is the radius of the ring upon 2 R square plus x square. x square क्या है यहाँ पे, सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो x square है, raised to power 3/2. This is a relation that we already have done in our previous chapter. With the application of this result only, अब मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कंपेयर करूंगी विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन. तो इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जस्ट कंपेयर दिस रिलेशन ओनली. तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट I. अब यहाँ पे R स्क्वायर था रेडियस ऑफ दिस लूप, तो यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है, हमने यहाँ पे A एज्यूम करा है. तो इंस्टेड ऑफ R स्क्वायर आई एम जस्ट राइटिंग A स्क्वायर अपॉन 2 R square. Again I am taking A square plus x square. x square क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट से सेंटर से इसका डिस्टेंस. अब सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है आपका, दिस इज योर R है,
बट क्योंकि हम एक छोटे से एलिमेंट का निकालना चाहते हैं, तो अगर हम छोटे से एलिमेंट का निकालेंगे दैट इज r माइनस एक्स ले रहे हैं, क्योंकि हम पहले क्या करते हैं, अगर हमें पूरे सोलोनाइड का निकालना है तो हम एक एलिमेंट का निकालते हैं पहले, और एलिमेंट का निकालने के बाद उसको रिजल्ट को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारी पूरी सोलोनाइड का निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो r जो डिस्टेंस है वो यहाँ से लेके यहाँ तक दैट इज r माइनस ए है, जिसका हमें निकालना है दैट इज r माइनस एक्स का होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2। Now if r is much greater than a and r is much greater than x, we are assuming that कि ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है as compared to the radius of the solenoid as well as the distance of this element from the point। ये पॉइंट का डिस्टेंस बहुत दूर है कि इसके कंपैरिजन में जो r है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, आपका distance is very small large than this radius as well as इससे भी वो बहुत ज्यादा increase है। So in above equation we can neglect these values, हम इसको और we can neglect x और a को हम neglect कर सकते हैं। तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा b is equal to mu naught I a square upon 2। तब जब हम ये डिस्टेंस r के कंपैरिजन में a बहुत छोटा है तो वी कैन नेग्लेक्ट दिस पॉइंट, दिस वन आल्सो एज वेल एज x को भी हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब आपका 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो रिजल्ट विल बी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³ आपका रिजल्ट बचेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब फॉर स्मॉल एलिमेंट dx, अब स्मॉल एलिमेंट dx के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, तो अगेन दैट इज विल dB से डिनोट करते हैं उसको हम, तो वो इसके इक्वल होगी आई ए स्क्वायर अपॉन 2r³। सपोज इस छोटे से एलिमेंट में n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाती हैं, सपोज इसके अंदर हमारी n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, इस एलिमेंट के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये आपका अभी जो हमने रिजल्ट निकालना था ओनली एक 1 रिंग के लिए था। सपोज यहाँ पे n नंबर ऑफ रिंग हो तो मल्टीप्लाई बाय n हो जाएगा आपका। नाउ वी ऑलरेडी हैव डन, n को हम डिफाइन करते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन द टोटल लेंथ। अब यहाँ पे टोटल लेंथ किसकी हो रही है, इस एलिमेंट की बात हो रही है, तो ये जो dl हो जाएगा वो क्या हो जाएगा n अपॉन dx हो जाएगा, और n इज इक्वल टू n dx आपकी वैल्यू होगा। जस्ट रिप्लेस दिस वैल्यू हेयर, यहाँ पर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपका जो इक्वेशन हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट आई ए स्क्वायर n dx, हमने n को रिप्लेस कर दिया अपॉन 2r³, ये आपका आ गया। नाउ अब हमें टोटल निकालना है तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस, ये आपका dB स्मॉल का निकला है, टोटल का निकालेंगे तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी एट पॉइंट P, दैट इज dB को इंटीग्रेट करेंगे, ये क्वांटिटी आपकी सारी कांस्टेंट है, this quantity and this quantity is constant, that will come out of the integration sign, mu naught I a square n upon 2r³, ये आपका कांस्टेंट है पूरी टर्म, और इंटीग्रेशन करेंगे dx को। नाउ व्हेन यू डू द इंटीग्रेशन, हमने क्या करते हैं कि जब हमें इंटीग्रेशन करना होता है तो ये हमने लिया, अब हमें इसके ऊपर लिमिट लगानी, क्योंकि हमने तो छोटे एलिमेंट का निकाल रहे हैं, अब टोटल का निकालेंगे, दैट मीन्स लेंथ आपकी ये पूरी है। सिंस वी हैव टेकन दिस इज द ओरिजिन, हमने इसको सेंटर पॉइंट माना है, तो इसकी जो राइट साइड वाली होगी वो प्लस रहेगी और जो लेफ्ट वाली होगी वो माइनस रहेगी। क्योंकि हमें टोटल सोलोनाइड का निकालना है तो लिमिट लगेगी -2 +L, तो लिमिट आ जाएगी -L से
प्लस एल तक की आपकी लिमिट हो जाएगी. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, द रिजल्ट विल कम हियर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर 2r³ यहाँ पर आपका जो एल आ जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो एल माइनस ऑफ माइनस एल आ जाएगा. जब एम एल माइनस ऑफ माइनस एल हो जाएगा तो दैट इज माइनस माइनस प्लस, तो इट विल बिकम 2l. आफ्टर ओपनिंग दिस वन, this will be your result. Now this will be your result. ये हमने जो निकाला था NDL, ये हमने स्मॉल एलिमेंट का था. ये दिस इज फॉर द स्मॉल एलिमेंट. अगर हमें टोटल का निकालना हो, n कितनी टर्म्स हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, this I just write the equation again, NIDA² 2l upon 2r³. ये जो N2l है, दिस इज N2l, दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड. तो यहाँ पर जैसे हमने n इज इक्वल टू n अपॉन dl करा था, n इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ. अब n इज द नंबर ऑफ टर्न्स है आपकी यहाँ पर, और टोटल लेंथ कितनी है आपकी यहाँ पर, अब 2l आपकी लेंथ हो गई. तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2l. सो यहाँ पे N2l को वी आर रिप्लेसिंग विथ n. तो म्यू नॉट आई ए स्क्वेयर n आपका आ जाएगा यहाँ पर अपॉन 2r³. जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पाई. अब ए स्क्वेयर पाई क्या होता है, ए स्क्वेयर पाई इज योर एरिया होता है. ठीक है. नाउ अगेन रिप्लेस हियर. ए स्क्वेयर पाई को मैंने ए लिख दिया एंड n अपॉन 2r³. नाउ we have done in the previous chapter magnetic dipole moment. This is magnetic dipole moment है, which is m is equal to क्या होता है आपका IA होता है. ठीक है. एंड अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएंगी तो यहाँ पर NIA हो जाएगा. Now again I am just replacing it over here. IAN की जगह I just write mu naught m upon 2r³. Now again I just multiply and divide by 2. तो आपका जो रहेगा रिजल्ट B is equal to mu naught 2m upon 4 पाई, यहाँ रह गया हमारा 4 पाई r³. दिस इज अ फाइनल रिजल्ट. किसके लिए फाइनल रिजल्ट हो जाएगा ये आपका, दिस इज फॉर द मैग्नेट फील्ड एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट पे जो मैग्नेट फील्ड है वो आपकी ये निकल कर आएगी. So this I already have done. How to derive it? Mu naught 2m upon 4 pi r³. हमने अभी इसका रिजल्ट डेरिवेशन करके देखे. वेयर m इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस सोलेनोइड, ये सोलेनोइड की. तो अगर आपको इस पॉइंट पर, इस पॉइंट P पे अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड निकालने तो वी हैव डन द डेरिवेशन. दिस इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द मैग्नेट
एट फार ऑफ एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मतलब एक्सिस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट पी बहुत दूर है, उस पर किस तरह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालें, वी हैव सीन दैट। I'm end up with the session. Today's session I'm just end up. We continue with the further derivation in the next video. Good day everyone.